किसी भी बिजनेस में उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इंडस्ट्री में कैसे होता है? हम लोगों ने ऑनेस्टली स्पीकिंग एज आई सेड हम ब्रांडिंग और मार्केटिंग में बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए अभी हम लोगों को कुछ सपोर्ट एक ब्रांडिंग ऑर्गेनाइजेशन को साथ में रखने का प्लान लिया है। माई सन हैज़ ज्वाइन मी इन लास्ट 2 years और उसका कहना है कि भाई ये काम मैं टेक ओवर करता हूँ। आई सेड वेरी गुड, यू कैन, ही इज़ BBA विथ मार्केटिंग एंड फाइनेंस, सो ही कैन डू better job. I said I'm better at technology and back-end process knowledge driven in the industry. You take the front end. So being B2B हमारा business में बहुत marketing का ज़रूरत नहीं है. Number 2, we are a legal driven business. If you generate waste as an industry, you will need a disposal point. So then that is where we come into practice. Only thing what we have maintained the philosophy in our company is कि हम लोग कभी भी किसी को मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर से हैंडल नहीं करने देते। वी बिलीव कि हम सर्विस इंडस्ट्री हैं, हमारा काम है सर्विस देना। सो हमने वी वर द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू जनरेट अ सर्विस टीम ऑन एनवायरनमेंट सेक्टर फॉर इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे यहाँ क्या MSME बहुत है, छोटे इंडस्ट्री बहुत है, दे डोंट हैव इनफ एक्सपर्टीज। तो उनको हमारे आदमी जाके उनसे प्रोसीजरल कंप्लीट कराना, कंप्लीशन करवाना, उनको कॉन्सेप्ट समझाना। वेरी क्वाइट ऑफन हम लोग सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं वेयर वी कॉल इनवाइट पीपल, टेल देम डूज एंड डोंट्स। वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि कंपनी को होलिस्टिकली ग्रो करना चाहिए। होलिस्टिकली ग्रोथ में अगर देखें तो प्रोफेशनल ग्रोथ, यू नो, सोसाइटी के साथ में यू डू सम ग्रोथ, जिसमें हम लोगों ने सोशल कॉजेज़ ऑफ ट्रेनिंग इंडस्ट्री, ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, ग्रीन जीन एक हमारा मिशन है। इंटरनल नॉलेज ग्रोथ, तो हमारे यहाँ इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ स्टाफ, नोइंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो सब एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। वी ऑल्सो डू some spiritual activity for our staff. Sometimes we arrange meditation and crash 1 week meditation plan early morning for the whole staff. हम इस तरह की चीज़ें इसलिए करते हैं कि दिस brings in more bond, more peace in the company. तो ये holistic approach को जब हम business में convert करते हैं तो you always get a better output. Social commitments are parallel in Luthra Group since inception of the group. We have a charitable dispensary operating for 30 years now, which is operating in a very old city, Surat city ka. We made a second branch. Then we concentrated on education. We did Luthra Institute of Management, a philanthropic activity, not for profit. We did skill development programs for various below poverty line people along with Rural Development Ministry. We started with sewing machines, stitching, bringing people, see that they stay for 1 month, feed them, put them in industry, follow up for 6 months, and then finally say, okay, now you are free. So that gives certain satisfaction, plus also it adds a lot of value to the service sector. Youth of this country is the next to be trained on environment. That is where this concept of Green Gene has come into place. Green Gene is an organization which has been built by our company to bring in knowledge into the school and colleges through training programs, through competitions and various programs across the city. We have started it in Surat and now we want to extend it in different parts of Gujarat and later in different parts of India. सर, एक और चीज़ हमारे दिमाग में आ रही थी जब आपका ब्रोशर पढ़ रहे थे। आपका ब्रांड का एक लोगो है फ्लाइंग हॉर्स, इसके पीछे की क्या स्टोरी? Well, honestly, this was done by my father somewhere in 70s. Flying horse is a Pegasus. Primarily, horse depicts strength, and the moment you add wings to the strength, you depict growth. This is the whole idea by which the whole logo was done. आपकी कंपनी को आप आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कहाँ देखते हैं? Well, as I said, अभी हमारा focus DMIC corridor है, and we want to see ourselves in DMIC corridor as a strong environmental support system to the corridor. That is our mission for the coming 3 to 4 years.
इंटरनेशनली वी आर प्लानिंग टू बी मोर विजिबल एज प्रोजेक्ट्स. अभी हम लोग सॉफ्ट वर्किंग इंटरनेशनली करते हैं, नॉलेज पार्टनरिंग वी गेट ऑल्सो, वी गिव ऑल्सो, बट वी वुड लाइक टू टेक अप प्रोजेक्ट्स in different parts of Middle East and Southeast Asia. That is our first target. यंग एंटरप्रेनर्स आजकल चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ नॉलेज मिले कहीं ना कहीं से. आप क्या उन्हें एक मैसेज देना चाहेंगे? Young entrepreneurs को I have been associated to several institutions. I go for sharing knowledge to IIMs and IITs and Think India, CII, young chapters, several places. What I have understood, there is no quick way to success. This is what they need to remember. मेहनत करो, रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट लास्ट करेगा. जो शॉर्टकट से काम करने की कोशिश करेगा तो वो शॉर्टकट में ख़त्म हो जाता है. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बी रेडी फॉर अ चेंज, एंड यू हैव टू चेंज. एज यू वर सेइंग, वाई डिफरेंट सेक्टर्स? You know, it is a change which has made us successful in certain areas because we adapted with time. The young generation has to understand one thing is, you are the only one who can help yourself. Nobody is there to help yourself. The moment they come out of college, the first thing they need to learn is, you are on your own, thrown in a sea. Now you swim with the sharks without being eaten alive. सर, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपका जो बिज़नेस है हैज़ार्डस केमिकल्स, ये वो सारी चीज़, वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसके लिए आपने कोई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और वेस्ट को देखने के लिए कोई रिसर्च की टीम वगैरह आपने बना के रखी? हमारे यहाँ एक 20 मेंबर की रिसर्च टीम है, वो तो नई टेक्नोलॉजीज ढूंढती है. ये जो काम है ये हमारा एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हर एक साइट पर है, विच हैज़ अ बिग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबोरेटरीज विथ PhDs and MPhils and MScs. उनका रोल है. वी हैव अ सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर द सेम, विच वॉज इन हाउस जनरेशन, 10 साल पहले बनाया था, उसको अभी भी इम्प्रूवमेंट होता रहता है. वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मेंटेन करता है वेस्ट की, क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए था, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए था, प्रोसेस चेंज तो नहीं करना है. तो वो अचीवमेंट, जो सॉफ्टवेयर अचीवमेंट है, इट इज़ हेल्पिंग इन क्वालिटी कंट्रोल. कुछ फिजिकल कंट्रोल्स है ऑफ एक्चुअल सैम्पलिंग एंड एनालिसिस, कुछ विजुअल कंट्रोल्स होते हैं, वीडियो कैमरास, मॉनिटरिंग. वी हैव अ कंप्लीट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अक्रॉस द कंट्री. क्योंकि आप टेक्सटाइल बिजनेस में शुरू से रहे हैं, आप फ़िलहाल गुजरात के टेक्सटाइल बिजनेस को किस तरह से देखते हैं? इट इज़ अ सर्वाइवल पॉइंट आ रहा है कहीं पे? Very highly competitive market until you really don't establish new products. And new products are 98%, 95% people are not able to do. They are copying. Synthetic textile is a very big strength of Surat. Cotton textile was a strength of Ahmedabad. अभी वो अहमदाबाद तो diminish हुआ. But again जो गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी दिया, टेक्सटाइल पॉलिसी ऑफ गुजरात, उसके बेस पे, क्योंकि हम कॉटन ग्रोइंग स्टेट है, आई एम वेरी होपफुल दैट नाउ कॉटन विल रिवाइव इन गुजरात इन अ वेरी बिग वे, एंड दैट विल गिव अस अ न्यू लाइफ टू द टेक्सटाइल सेक्टर. सिंथेटिक में हम थे, कॉटन में आ जाएंगे, ग्रेजुअली ब्लेंड्स भी आएंगे, द प्रोडक्ट रेंज विल इंक्रीज. थैंक यू सो मच मिस्टर लूथा, इतनी सारी बातें आपने हमको शेयर की. बेसिकली आपका जो बिज़नेस है वो नॉलेज ड्रिवन बिज़नेस आपने मुझे बताया. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सोसाइटी के लिए सोच रहे हैं, और जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है उसको आप बिज़नेस में कन्वर्ट करके ग्रोथ भी कर रहे हैं. दैट इज़ हाईली इंस्पिरेशन फॉर द यंग जनरेशन. थैंक यू सो मच टू टॉक विद अस. थैंक यू.